Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So, after attempting IBPS RRB officer, many candidates are in a stage of shock and confusion. And daily I am getting some comments or some messages saying, Sir, I am totally shattered, confused. I am not able to understand whether I should prepare for mains or I should prepare for future exams, whether the IBPS RRB clerk will be also tough, whether all other exams will be tough. What is your take? Now, what happens is sometimes when we appear for the competition, the first exam is easier. Then we get confidence and we can face other exams with confidence. But sometimes first exam is tougher. It shatters our confidence. But we have to be bold. Why this state of confusion is going on in our mind? The basic reason is that the various people are analyzing the exam indifferently. They are predicting some cutoff as per their knowledge and their wisdom. And this leads to confusion in the mind of candidates. Although there is no scientific method to know the cutoff, but still some people venture it. And since they venture it and they command lot of respect with the candidates gets the confusing signal. And this confusing signal sometimes, instead of helping them, harms them. Because once we go through various predictions, it may comes out to be true, it may not comes out to be true, but it definitely affects our brain. And once it affects our brain, it sometimes derail our preparation. So my advice is, instead of taking these things to heart, be rational. And be rational means what is in my hands I should do. What is not in my hands I should not bother. What will be cut off, it is not in my hands. Why? Because cutoff is not dependent only on your performance. Cutoff is dependent on various factors like number of vacancies, the attempts done by various candidates, those are competing you. You might have performed better than them, you might have performed less than them. So this is not in your control. Whatever you could do, you have already done. But if you stop studying, if you don't focus on study, you are losing time. This lost time cannot be retrieved. Sometimes what happens is, by seeing my performance, by listening so many wise people, I develop a feeling that I will not clear the exam. And I stop studying. And one fine morning result comes. And I am surprised by seeing that I have cleared the exam. Then I cannot retrieve this time, because I have already lost an opportunity merely by disbelieving myself. And this is a very sorry state of affair, that in this world of lot of information, sometimes we are overfed by the information. And this overfeeding of information also sometimes acts deterrent for our development. So my only suggestion is, as something is unpredictable, we should not go by the predicted levels by certain wise people. Rather, I should remain cool, focus on my study, try to retrieve and put my concerted efforts. Because what is in my control? My efforts. What will be cut off, that is not in my control. I have already given the examination. Now the stage is set for second phase or pre-examination of future exams. So if I continue to study, if I continue to focus on my preparation, I may be winner in one of the exam. But if I lose my heart, if I feel let down, and if I stop studying, and if I keep worrying,
it will damage me. So my advice is continue your study irrespective of your attempt. Study will not harm you. You will gain knowledge on daily basis, and that knowledge will be useful in either of the examination. Since cutoff is unpredictable, expect for unexpected result also. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करें। जब से IBPS RRB PO का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें कुछ लोग तो खुश हैं, उनकी अच्छी परफॉर्मेंस है, कुछ लोग परेशान हैं, उनकी मॉडरेट या लो परफॉर्मेंस है, और वो बार बार मैसेज भी डालते हैं, कमेंट में भी कहते हैं कि सर हमारा मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, हमें लग रहा है सब कुछ चला गया हाथ से। और ये जो निराशा का भाव है, ये आपको नुकसान पहुंचाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, आपके मन में निराशा आ रही है? क्योंकि आप कई बार बहुत सारी चीज़ों से, बहुत लोगों से डिस्कस कर रहे हो, और अधिक से अधिक लोग अपने अपने ढंग से अपनी बातें आपके सामने रख रहे हैं। बहुत समझदार लोग हैं जो लोग ये बातें रख रहे हैं, बहुत वाइज लोग हैं, वो जितना उनको ज्ञान है उसके अनुसार बातें आपके सामने रख रहे हैं। उसमें हम ये नहीं कह सकते कि वो बातें सही हैं या गलत हैं। ये सब अंदाजे हैं, अंदाजे सही भी निकलते हैं, गलत भी निकलते हैं, ये सब जानते हैं। मगर जो हो चुका है उसको आप वापस नहीं ला सकते। जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। कट ऑफ क्या होगा ये किसी को भी नहीं पता, और कुछ भी हो सकता है कट ऑफ। इसलिए जो मैं कर सकता हूँ वो मुझे करना चाहिए। मैं क्या कर सकता हूँ? जिनकी अच्छी परफॉर्मेंस है उनको लगी रहे अगले फेज पे आ जाएंगे, वो तो तैयारी कर ही रहे हैं। जिनकी मॉडरेट या कम परफॉर्मेंस है वो घबराहट में है या परेशानी में है, और वो अधिकांश लोग हैं। उनको अपनी पढ़ाई से नज़र नहीं हटानी चाहिए। देखो, जो आप कर सकते हो वही तो आप करोगे ना। जो आपके बस में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, उसकी चिंता करके आप अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हैं? और कई बार क्या होता है कि मैं निराश होकर बैठा हूँ, मुझे लग रहा है मेरा नहीं होगा, अचानक रिजल्ट आता है, मैं पास हो जाता हूँ। अब मैं क्या करूँगा? जितने भी समझदार लोगों की दी हुई सलाह है वो मान लो गलत हो जाती है, तो मैं क्या करूँगा? वक्त तो वापस नहीं आ सकता, वक्त तो निकल गया मेरे हाथ से, और वक्त सबसे कीमती चीज़ है, इसको इस्तेमाल करना है। अगर मैं पढ़ता रहता हूँ तो मेरा क्या नुकसान हो जाएगा? अगर मैं मेन की तैयारी करता रहता हूँ तो मेरा क्या नुकसान हो जाएगा? मैं मेन की भी तैयारी करूँ, आने वाले प्री एग्ज़ाम की भी तैयारी करूँ, बैलेंस करके तैयारी करूँ। मैं रोज़ कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ, और ये जो मेरे सीख है ये मेरे किसी न किसी एग्ज़ाम में काम आने वाली है। और अगर मैंने अपने आप को बैक ट्रैक कर लिया, अपने को कंपटीशन से निकाल लिया, और मैं निराश होकर बैठ गया, तो नुकसान किसी का नहीं होगा, केवल मेरा होगा। ये हमें समझना है। जो चीज़ मेरे बस में नहीं है उसके ऊपर ज़्यादा एनर्जी मत लगाइए, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। 2 साल से हम कट ऑफ प्रेडिक्शन नहीं कर रहे इस चैनल पे, क्योंकि मैंने ये देख लिया है कि इसका कोई साइंटिफिक मॉडल है ही नहीं। सिर्फ ये एक गैस वर्क है, और इस गैस वर्क से क्या होता है, कुछ लोगों को फ़ायदा भी हो सकता है, कुछ को नुकसान भी हो जाता है। इसलिए उस चीज़ में हमें पढ़ना ही नहीं है। मैंने अपना काम किया, मैंने फर्स्ट फेज दिया, अच्छा किया, जो हो गया सही है। मैं पास हो भी सकता हूँ, नहीं भी हो सकता हूँ, ये भी मुझे पता है। कंपटीशन का दौर है, कुछ भी हो सकता है। मगर अगर मैं पढ़ता रहूँगा उससे मुझे क्या नुकसान होना है, ये मुझे नहीं समझ आता। जो लोग कहते हैं सर मैं पढ़ूँ कि नहीं पढ़ूँ, ये क्वेश्चन मुझे आज तक समझ नहीं आया। मैं हमेशा कहता हूँ कीप ऑन स्टडिंग, बी एग्ज़ाम रेडी। कुछ नहीं बिगड़ने वाला आपका। पढ़ेंगे तो क्या नुकसान होएगा, कुछ सीखेंगे ही ना। जितने भी आने वाले एग्ज़ाम हैं उनको भी फोकस में लीजिए, और जो इसका मेन है उसको भी फोकस में लीजिए। कोई नुकसान नहीं होना आपको। बहुत सारी प्रिपरेशन कॉमन नहीं है। अगर डेली आप चारों सब्जेक्ट की तैयारी करते जाते हैं तो किसी ना किसी एग्ज़ाम में आपका बेड़ा पार हो जाएगा। पर निराश होकर मत बैठिए। तरह तरह के विचार आएंगे, ये दुनिया है। हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपने विचार रखने के लिए, और बहुत ज़्यादा उन विचारों को मान के
अपने आप को मत डाउन करिए, आप आगे बढ़िए, आप जीतेंगे। और जीतेंगे सिर्फ यदि आप प्रयासरत रहेंगे। प्रयास छोड़ देंगे तो कोई आपको नहीं जिता सकता, और प्रयासरत रहेंगे तो जिता देगा। अब आप देखेंगे मैं रोज़ मॉर्निंग के अंदर उठ के आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ, जो मर्जी हो जाए दुनिया के अंदर, पर मैं अपना रेगुलर रूटीन नहीं छोड़ता हूँ। उसका फ़ायदा हुआ है, आज 28,000 से अधिक हमारे चैनल सब्सक्राइबर हैं जो बैंकिंग, इंश्योरेंस, अदर सेक्टर में कार्यरत हैं। दिन रात वो तारीफ़ करते हैं, दिन रात हज़ारों और लोगों को बताते हैं कि आप अनिल अग्रवाल जी का चैनल देखिए, उससे आपको मदद मिलेगी। आज अगर हम रेगुलर हैं, आज अगर हम सही दिशा आपको दिखा रहे हैं, तो आज हम बिना एडवर्टीज़मेंट के आज इतने बड़े लेवल पे खड़े हैं। 3,31,000 से अधिक चैनल सब्सक्राइबर हमारे हैं। और कितने ऐसे एम्प्लॉइज़ हैं जो बैंकिंग के अंदर है। किसी भी बैंक में मैं चला जाता हूँ, वहाँ लोग खड़े होकर कहते हैं कि सर आप अनिल अग्रवाल हो, मैंने आपके चैनल से पढ़ाई की है, और कितनी खुशी मिलती है। आज कोई भी ऐसा बैंक नहीं बचा है जहाँ हमारे चैनल सब्सक्राइबर नहीं है। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपने ऊपर भरोसा रखें, अपने में भरोसा है, जीत तो होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल।